Welcome everyone and assalamu alaikum to our webinar on the importance of cloud security. सबसे पहले तो आप सबको हेलो एंड आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे. So today we will be discussing a very important topic, that is cloud security and its importance. So it's increasingly relevant in today's world. So whether you are a business owner, an IT professional, or someone who is just interested in cloud security, this webinar is for you. So just hang tight. Uh, Basically, cloud security हमारे पास है क्या? What is it? So it's basically practice of protecting cloud-based applications, data, and infrastructure from cyber attacks. So जैसे जैसे हमारे पास क्लाउड की adoptions बढ़ती जा रही है, more and more critical applications and their data are moving to the cloud as well. सो जो मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन्हें हम CSPs भी कहते हैं, वो ऑफर करती हैं साइबर सिक्योरिटी के टूल्स, बट दैट ऑलवेज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड द इनफ कवरेज, which means that enterprises required what security measures they need, they not fulfilling their 100% coverage. सो टिपिकली जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन्हें हम CSPs भी कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टवेयर दैट रनिंग इन द क्लाउड. लाइक the CSP is responsible only for the software networking and facilities that runs the cloud, but not responsible for the security in the cloud. Like हम cloud के अंदर क्या चीज यूज कर रहे हैं, वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो लाइक जो भी हम चीजें उनकी रिसोर्सेज क्लाउड की कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, किस तरह यूज कर रहे हैं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो just because it's in the cloud does not mean it's safe. So without further ado, let's get started. I am Ali Hassan Gori and I will be your host for today's sessions. I have been working in the field of cybersecurity for over 7 years and I am very excited to host this session with our special guest Mansoorul Hassan. Mansoor is a well-respected expert in the field of cyber security and cloud security, specifically cloud security. Mansoor has worked with various organizations and businesses to ensure that their cloud infrastructure is secure and protected against cyber attacks. He has a wealth of experience and knowledge in this field, and we are very confident that this webinar will provide a valuable insight to our audience. So, without further ado, and we are very fortunate to have Mansoor with us today to share his insight and knowledge on the importance of cloud security. And I would like to invite Mansoorul Hassan to take the stage and begin his presentation. This is Mansoorul Hassan. I have around nearly 14 plus years of experience. I spent my career in building highly available and durable scalable application infrastructure. So अगर आप मैं अपने थोड़ा सा बारे में बताऊं तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइबर सिक्योरिटी से लेकर सैटेलाइट इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर इंजीनियरिंग और डेवऑप्स सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो इस तरह के जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है नियरली 14 प्लस इयर्स में. और आई बिल्ट लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन. Some of them are very known to you guys, even the people who lives in Karachi, Lahore, and Islamabad. So you guys using the application that actually I built. So infrastructure actually, not the application. I designed the overall functionality of the application as a solution architect. So दिस इज माई एक्सपीरियंस. सो थोड़ा सा मैं अपनी सर्टिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ. आई हैव डन CKA विथ 99%. CKA इज सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू क्यूबरनेटीज, क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंजीनियर. फिर रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर विच इज RHCE. Red Hat Certified System Administrator, which is RHCSA, CCNP, Cisco Certified Network Professional, MCITP, Microsoft IT Professional, AWS Solution Architect Associate, Certified Ethical Hacking V6 and V8, and Microsoft Certified Professional for Virtualization. And there are many other certification I already did, which I didn't get a chance to list over here. So that's about me. Without wasting our time, let's move to our agenda. The first topic of agenda is fundamentals of cloud security. As Ali stated, nowadays companies are increasingly look for the cloud computing, and they are expanding their business, and they are actually trying to modernize their infrastructure and application architecture, which led them to stay competitive in the market.
द रीजन बीइंग मूविंग टुवर्ड्स द क्लाउड इज कि जब भी हम जो हमारी ऑन प्रेम या लोकल होस्टिंग होती है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इट हैज वेरी लेस इट इज वेरी लेस स्केलेबल इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. सो लोग जो है कंसिडर कर रहे हैं, दे आर स्टार्ट परस्यूइंग के अपनी एप्लीकेशन को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक क्लाउड के ऊपर ले जाएं, जहां पर स्केलेबिलिटी इजी है, जहां पर सिक्योरिटी इजी है. जैसे जैसे कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लाउड, वहां पर जो अटैक सरफेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है. ऑब्वियसली, एज अली स्टेटेड के इफ यू आर इन क्लाउड डजंट मीन यू आर सेफ. There is a model called shared responsibility model actually followed by all CSP. So वहाँ पर कुछ shared responsibilities होती which we will discuss later in this session. But at the moment we discuss fundamentals of security कि जहाँ पर जो हमारे क्लाउड के ऊपर चीजें होती है, वहां पर 80% हमारे जो सीसो होते हैं, जो बेसिकली चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, दे क्लेम कि उनकी कंपनी के ऊपर डाटा ब्रीचेस हुए हैं इन लास्ट 18 मंथ्स. इवन ये जो रिपोर्ट है, ये एर्मेटिक एनआईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक है कि 80% सीसो ये रिपोर्ट कर चुके हैं. और नियरली हाफ ऑफ दोज, लाइक 80% में से 43% ये कहते हैं कि उनके पास जो डाटा ब्रीचेस हुए हैं वो 10 टाइम्स हुए हैं. So that is a quite a huge number in terms of data breaching or in terms of security compromise. So all of them are nearly on cloud or local. So you can assume कि cloud security या फिर security कितनी important होती है. Even the people who own CISO, डेफिनेटली उनका एक सॉक का डिपार्टमेंट होगा, और उसके बावजूद भी आपकी चीजें जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं. सो वी गॉन थ्रू विद द स्टडी किस तरह से लोगों को आज तक डाटा ब्रीच फील हुआ है. नाउ व्हाट इज द क्लाउड सिक्योरिटी एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. सो क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में हमने जैसे बोला कि क्लाउड सिक्योरिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास सिर्फ जो आपकी एप्लीकेशन है, एक तो आपका कस्टमर का डाटा होता है विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और दूसरा आपकी ब्रांड की रेप्यूटेशन होती है, इस वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो इसी और इसी तरह से आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है कि जब आपके पास ब्रीचेस होते हैं तो जो हैकर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं पे भी. सो व्हाट आर द रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. मिसकॉन्फ़िगरेशन. अच्छा, मिसकॉन्फ़िगरेशन को जब हम मे बी पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम द सिक्योरिटी बैकग्राउंड, सो उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया होगा कि मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. सम टाइम क्या होता है कि हम अपने पास ओल्ड सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं. सम टाइम हम ये करते हैं कि अपने पास जो है जो डिफ़ॉल्ट पाथ्स हैं उनके पर परमिशंस के इश्यूज छोड़ देते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो है वो अननेसेसरी यूजर्स ओपन होते हैं, और या अननेसेसरी प्रिविलेजेस होती हैं. सर्वर के ऊपर ओल्डर वर्जन्स लगे हुए होते हैं. तो इस तरह की हमारे पास डिफरेंट किस्म की मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है. मे बी हमारे पास रूट जो है वो पब्लिकली एसएसएल जो होता है वो पब्लिकली ओपन होता है. जो हमारे पास टेम्प डायरेक्टरी है उसके ऊपर परमिशंस नहीं होती, या वो डायरेक्टरी जहां पर हमारी एप्लीकेशन डाटा अपलोड कर रही है वहां पर एडिशनल परमिशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीचेस का बाइस बनती हैं. सेकंड, एक्सेसिव बिलिंग. समटाइम ये होता है कि हम अपने पास जो है मिसकॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और हमारे पास जो एप्लीकेशन मतलब जो हमारा क्लाउड होता है या फिर हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो एडिशनली यूज होने लगती हैं. छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि समटाइम होता है कि आपके पास आपके एप्लीकेशन को किसी ने वल्नरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करा, और उसने आपके सर्वर का एसएसएच लिया और आपके सर्वर के ऊपर एक बॉट छोड़ दिया, और उस बॉट को वो लेटर ऑन ट्रिगर करता है डीडॉस के लिए. ठीक है. तो वो डीडॉस के लिए जब ट्रिगर करता है तो आपकी नेटवर्क की जो क्लाउड के ऊपर जो नेटवर्क की आउट बिलिंग होती है वो बढ़ जाती है. इसी तरह से आपके पास जो क्लाउड के अंदर जो है अगर डिफरेंट क्लाउड है, जैसे हमारे पास AWS है, एजर है, GCP है, तो ये आपको ऑटो स्केलिंग की कैपेबिलिटीज देते हैं, ताकि जब आपके पास हाई ट्रैफिक आए
तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाए। तो होता क्या है कि जब आपके पास आपके सिस्टम के ऊपर डीडॉस पड़ता है तो आपकी एप्लीकेशन जो है, क्योंकि वो ऑटो स्केलेबल है, तो वो क्या करती है, आपकी एप्लीकेशन स्केल हो जाती है और वहां पर आपके ऊपर जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो पड़ जाती है। इसी तरह से आपके पास जो है डिफरेंट किस्म की इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स की कॉस्ट पड़ जाती है जो कि क्लाउड प्रोवाइडर्स चार्ज करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सेसिव ट्रैफिक की वजह से आपका कोई इक्विपमेंट डाउन हो जाता है, लेट से आपके पास कोई फायरवॉल है, एक्सेसिव ट्रैफिक की वजह से वो डाउन हो जाता है, वो मेल फंक्शन कर जाता है, तो दैट इज एन अगेन पार्ट ऑफ योर बिलिंग। Data breaches, obviously this is the main risk for any side of security or any sector. Maybe someone able to get access to your database, maybe MySQL को उसने SQL इंजेक्शन के थ्रू आपके डेटाबेस को ब्रीच करा और वहां से उसने सारा डेटाबेस का डंप ले लिया और आपका डाटा ब्रीच हो गया, विच इज रिलेटेड टू PII मे बी, और आपके कस्टमर का डाटा निकाल लिया। तो यहाँ पर जो डाटा ब्रीचेज हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क है क्लाउड के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, कि आपके पास अगर सिक्योरिटी टाइटली इंटैक्ट नहीं है तो लोग जो है आपका डाटा को जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, मे बी वो डाटा आपके ब्रांड के लिए जो है ना एक रिस्क बन जाए, ब्रांड रेप्यूटेशन के लिए रिस्क बन जाए। तो डाटा ब्रीचेस बेसिकली जो क्या नाम है, अपना ब्रांड रेप्यूटेशन है उससे रिलेटेड रिस्क को इंक्रीज करते हैं। Then we have a criminal activities. Maybe someone able to get access to your infrastructure, then वहां पर वो आपके सिस्टम से जो है वो डीडॉस, लाइक एज आई सेड, कि वो एक बॉट इंस्टॉल कर देता है, देन वो ही विल बी एबल टू ट्रिगर दैट बॉट, एंड वहां पर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर लेता है, लाइक डीडॉस बना दिया। मे बी आजकल जो सबसे बड़ी एक्टिविटी चल रही है वो माइनिंग की होती है, कि पीपल गेट एक्सेस टू योर सर्वर्स एंड देन they start doing mining and they start earning coins from your resources। और इस सम टाइम क्या होता है कि वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर देते हैं कि आपके पास टनल क्रिएट करके किसी रिमोट सर्वर पे जाते हैं, वहां से उस रिमोट सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इवेंचुअली क्या होता है कि जब वो रिवर्स क्रैक करते हैं तो आपका सर्वर जो है वो कल्प्रिट निकलता है कि आपके सर्वर से ये एक्टिविटी हुई है। सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग ईमेल्स करते हैं आपके सर्वर को SMTP बना के, और कुछ लेजिटिमेट ईमेल्स जनरेट करते हैं। तो ये भी एक इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। तो इस तरह की बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो अगर आपके पास सिक्योरिटी इंटेक्ट ना हो तो वहां पर वो कॉज कर सकती हैं। अच्छा, अभी किसी ने हैंड रेज करा था, तो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस इन एंड ऑफ द सेशन। सो अगर आप लोगों को कोई question आए तो you can write it down in the chat box, then we will go through with those questions. So now we will discuss about the cloud security frameworks. ISO, which is very known to the people who lives in Asia, कि हम बेसिकली ISO जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जो कि बेसिकली इंश्योर करता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी है, जो प्रोसेसेस हैं, और जो आपके मे बी कोई भी किसी भी तरह के प्रोसेसेस हैं वो इन लाइन हो। तो ISO में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बेसिकली आपके डेटा से रिलेटेड, आपकी अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, आपकी उसमें अवेलेबिलिटी में भी एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी भी है, और इस तरह की जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड भी कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस हैं जो बेसिकली ISO मेंटेन करता है। तो ISO के डिफरेंट किस्म के वर्जन्स हैं, ना अभी जो जो बेसिकली जो स्पेसिफिकली है 27017 और 27018 जो है पर्टिकुलरली डील करते हैं वो क्लाउड सिक्योरिटी को। उसमें वो उन्होंने कुछ ऐसी चेकलिस्ट लिखी हुई हैं कि जो बेसिकली अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो हम एक बेस लाइन को मीट कर रहे होते हैं अपनी क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर। देन वी हैव अ निस्ट। निस्ट जो है एक बेसिकली US बेस्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो बेसिकली चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम के लिए। जो इसका मेनली निस्ट का जो कंसंट्रेशन है वो अराउंड RBAC है,
और मे भी अगर अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके बताऊं तो उसमें ये होता है कि आपके पास वो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डिटेक्शन और प्रिवेंशन से रिलेटेड उनके कुछ रूल्स हैं, और उन्होंने कुछ अपने एक लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं कि ये इन आप इन स्टैंडर्ड्स को अगर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड करा है तो आपके पास ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के ऊपर इस तरह के लाइंस ड्रॉ करी हैं उन्होंने। तो वहाँ पर एक बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो नेस्ट फॉलो करता है, जो मेनली अगर मैं कहूँ तो वो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के अराउंड है। कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है होस्ट हुई हुई है, तो अगर वहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो आप उसको किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, क्या कंट्रोल्स प्लेस हैं आपके पास, क्या कंट्रोल प्लेस होने चाहिए अगर नहीं है तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो निस्ट जो है ना इंश्योर करता है। फिर उसके बाद हमारे पास CSA है, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। ये भी एक हमारे पास मैकेनिज्म है जो बेसिकली ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। इनके जो लाइक आपके पास जो इंटरनल ऑडिट्स हैं या थर्ड पार्टी ऑडिट्स हैं, उनके क्या टेक्निकल लेवल्स होने चाहिए, उनके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इट्स मोर लाइक ऑन ऑपरेशनल साइड। देन वी हैव some more like PCI, PSI, DSS। like अगर आपके पास आप कोई पेमेंट गेटवेज मेंटेन कर रहे हैं तो यू शुड बी कंप्लाइंट ऑन PCI DSS। वहाँ पर जो है PCI DSS जो है उनके जो कंट्रोल्स होते हैं। इसके अलावा CIS है। CIS बेसिकली बेंच मार्किंग है आपकी सिक्योरिटी के लिए। CIS की इस तरह से और भी बहुत सारे हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर नीड्स। तो क्लाउड सिक्योरिटी में नॉर्मली लोग CIS को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, PCI को फॉलो कर रहे होते हैं, PCI DSS को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह के निस्ट को भी कहीं फॉलो कर रहे होते हैं। निस्ट बेसिकली जो मैंने आज तक इम्प्लीमेंटेशन देखी है वो जहाँ पर वो अपना एप्लीकेशन की ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन है वहाँ पर ज़्यादा उसके कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है मैंने। तो ये हमारे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हमने। अच्छा, PCI DSS में ये होता है मेनली वो पेमेंट गेटवेज को जहाँ पर आप कस्टमर की जो वो इंफॉर्मेशन जो उसकी PII है और उसके फाइनेंशियल से रिलेटेड है, वहां पर आप PCI DSS या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर रहे हो। अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर रही है या फिर उसका डाटा स्टोर कर रही है, तो आप लोग मतलब उस एप्लीकेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन को PCI DSS कंप्लाइंट होना जरूरी होता है। अब कोई ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर उनको PII कंप्लाइंट होना जरूरी है। तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपके पास जो भी एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर सेटअप है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड के ऊपर सेटअप है, वो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो, ताकि ब्रीचेस के चांसेस ऑब्वियसली हम कभी भी ये नहीं कह सकते वी आर 100% सिक्योर। एक नॉर्मल एग्जांपल हम अपने यूनिवर्सिटी के टाइम से सुनते आ रहे हैं, यू कांट स्टॉप अ हैकर टू हैक यू, बट यू कैन मेक हिज टास्क और जॉब डिफिकल्ट। सो दैट्स वाई हम जो है क्लाउड सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि ऑब्वियसली हम किसी को रोक नहीं सकते और ना हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम 100% सिक्योर है, बट वी कैन मेक देयर जॉब हार्डर। This is the all you can say the gist of cloud security or system security. अच्छा, लोअर अपफ्रंट कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि हमारे पास जब हम कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं तो क्लाउड सिक्योरिटी को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास मतलब अगर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, अगर हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को चूज करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है लोअर अपफ्रंट कॉस्ट। लोअर अपफ्रंट कॉस्ट क्या होता है कि जब हम अपने पास लोकली इन्वायरमेंट के ऊपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की हमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल खरीदनी पड़ते हैं, हमें IPS खरीदने पड़ते हैं, हमें IDS खरीदने पड़ते हैं, हमें एक्सपर्ट लोग हायर करने पड़ते हैं, और हमें जो है डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। तो वहां पर जो है ना एक बहुत बड़ी अपफ्रंट कॉस्ट होती है जो आपको बेयर करनी एज ए ऑर्गेनाइजेशन बेयर करनी पड़ती है। अगर मैं बोलूं कि अगर अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपके यूजर्स जो हैं वो आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव इंटरप्राइज
VPN सिस्टम, और अगर आपकी एप्लीकेशन आप खुद होस्ट करते हैं तो वहां पर आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल चाहिए, एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, फिर उसका लाइसेंस होता है। सो ये सारे जो काम होते हैं ना आपके लिए, जो बेसिकली अपर लेवल सिक्योरिटी होती है, वो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है ना उसको इंश्योर कर रहे होते हैं। वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपके पास डीडोस प्रोटेक्शन हो, वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपके पास अगर कोई इंट्रूजन अटैक हो रहे हो तो वो भी वो प्रिवेंट कर रहे हो एक्टिवली। इसके अलावा वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो हाईली सिक्योर्ड हों, जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर उनके अंदर जैसे बहुत टाइम पहले एक वो निकला था, वल्नरेबिलिटी निकली थी प्रोसेसर के अंदर, तो वहां से जो है आपका प्रोसेसर कॉम्प्रोमाइज करते थे, सॉरी प्रोसेस हाँ हार्डवेयर में एक बायोस में थी आई गेस, थोड़ा सा कुछ ऐसे मुझे याद आ रहा है। तो वहां से वो हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, और हार्डवेयर से आपकी एप्लीकेशन तक एक्सेस मिल जाता था, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम तक एक्सेस मिलता था, देन फिर एप्लीकेशन तक रूट लेवल एक्सेस मिल जाता था। तो जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि आपके हार्डवेयर लेवल पे कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, आपके पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, और आपके पास डी डॉस ना हो। तो इस तरह की जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है ना, वो क्लाउड से क्लाउड के यूसेज के केस में जो है ना बड़ी लो हो जाती है। That next we have reduced ongoing operational and administrative cost. Obviously जब हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, डाटा सेंटर सेटअप करते हैं, तो वहां पर एक ऑनगोइंग कॉस्ट होती है डाटा सेंटर की, उसको फिर हमने बैकअप जो है पावर सप्लाई करनी होती है, फिर हमने उसके लिए बैकअप हार्डवेयर रखना होता है, फिर हमने जो है 24/7 सपोर्ट रखनी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग हमने हायर करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, उसकी एक एडिशनल कॉस्ट होती है। तो वो जो पार्ट है जिसमें हमने बैकअप हार्डवेयर मैनेज करना है, बैकअप लोग मैनेज करने हैं, बैकअप पावर मैनेज करनी है, तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना वो हमारे लिए मैनेज कर रहे होते हैं। वो हमारे लिए जो है ना हाईली एक्सपर्ट लोग हायर कर रहे होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, वो हाईली स्किल्ड सिक्योरिटी के लोगों को हायर कर रहे होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि आपकी जो आपके पास जो सिस्टम डिप्लॉयड है वो हाईली सिक्योर हो। इस तरह के वो सेफ गार्ड्स लगा रहे होते हैं, वो एक इंटरनल सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह के जो ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट होती है उसको वो रिड्यूस कर रहे होते हैं अगर हम क्लाउड के ऊपर जाते हैं। That is the main benefit having cloud, like increase reliability and availability. um, जब हम लोकली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खुद डाटा सेंटर और सैटेलाइट इंजीनियरिंग से है, तो आई कैन फील द पेन ऑफ रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। समटाइम ऐसा होता था कि हमें रातों को उठकर ऑफिस आना पड़ता था कि हमारी एप्लीकेशन डाउन हो गई या हार्डवेयर डाउन हो गया, हम ESXi मैनेज करते थे अपने पास। तो होता क्या था कि समटाइम जो है हमारे पास ESXi का कोई मास्टर डाउन हो गया, तो हमें रात को 3 बजे भी उठकर आना पड़ता था, और हम जो है वो उसको अप कर रहे होते थे। सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि हम 2-2 3-3 दिन ऑफिस से घर भी नहीं गए। इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने अपने पास्ट में बर्दाश्त करे हैं, जहाँ पर जो है हम स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के हम बड़े चैलेंजेस होते थे जब हम अपनी एप्लीकेशन को लोकली होस्ट करते थे। बट ये प्रॉब्लम और ये चैलेंजेस जो है हमारे लिए हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स ने या जो CSPs हैं उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। उन्होंने बेसिकली हमारे एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको इंश्योर करा कि हमारा डेटा जो है हाईली अवेलेबल हो। जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है मल्टी एजी का, तो वो इंश्योर करते हैं कि आपका डेटा जो है मल्टीपल रीजन्स के अंदर जो ना रेप्लिकेटेड हो। वो इंश्योर करते हैं कि जो अंडरलाइन हार्डवेयर हो वो उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। वो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया हुआ था कि अगर उनका कोई अंडरलाइन हार्डवेयर फेल हो जाए तो जो कस्टमर का जो एप्लीकेशन है या कस्टमर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट हो। कि जैसे अगर आपके पास AWS के अंदर आपके अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है, सो वो ऑन द फ्लाई ही आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है या जो आपका कंटेनर होता है या जो भी आपकी रिसोर्सेज होती हैं उनको ऑन द फ्लाई ही दूसरे होस्ट के ऊपर माइग्रेट कर देता है, विच इज जो हमारी ना रिलायबिलिटी को और अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है।
तो इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। वो उसको जैसे लेट्स सपोज हमारे पास डीडॉस आया, तो डीडॉस में वो क्या करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि जो लेजिटिमेट ट्रैफिक हो वो ही आपके सर्वर्स तक थ्रू हो रहा हो। डिफरेंट किस्म के सर्विसेज को वो यूज करते हैं और उन डिफरेंट किस्म के टूल्स को वो यूज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो आपके पास कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस ना हो। बट यहाँ पर एक बात थोड़ा सा नोटिफाई करने की है कि इट डजेंट मीन कि वो हर तरह के सिक्योरिटी को इंश्योर करते होंगे। जैसे कि तमाम सीएसवी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को फॉलो करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर कुछ जो होस्ट जिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड के ऊपर है वो उन चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी पोटेंशियल थ्रेट ना हो, और अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो तो वो उसके ऊपर मिटिगेशन क्विकली करें। मतलब यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। आपकी एप्लीकेशन को स्केल करना आपके लिए आसान होता है। अगर आपके पास अनवांटेड मतलब अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर अपफ्रंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्केल्ड हो जाता है और वहाँ पर आप अपनी रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव डीडॉस प्रोटेक्शन, कि डीडॉस हो तो वो उसको मिटिगेट करते हैं, आपके सर्वर को हार्म नहीं होने देते। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, सो व्हाट टू लर्न। हमें जो सीखने की जरूरत है वो है जीरो ट्रस्ट। कि जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो आपके पास ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बेसिकली इंश्योर करते हैं कि कोई भी लाइक वल्नरेबिलिटी या कोई भी ब्रीचेस ना हो। देन वी हैव टू लर्न रन टाइम एप्लीकेशन सेल्फ असेसमेंट प्रोटेक्शन, कि आपकी एप्लीकेशन में इस तरह के मैकेनिज्म हो कि जो चेक सम कर रहे हो और डिपेंडेंसी चेक के चीज़ें लगी हुई हों आपके पास, डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन के अंदर चेक पॉइंट्स हो जो सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हो, डेटाबेस की कम्युनिकेशन को इंश्योर कर रहे हो। तो ये बेसिकली रन टाइम एप्लीकेशन से रिलेटेड है। आई एम गोइंग लिटिल फास्ट क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। DevSecOps is a new term that actually we are following, कि आपके पास जो आपकी डेवलपमेंट, अब यहाँ पहले हम डेव ऑप्स की बात करते थे, यहाँ पे अब तीन चीजें हैं, डेव सेक और ऑप्स। मतलब हम ऐसे लोग हायर करें जिनको डेवलपमेंट का भी आइडिया हो, सिक्योरिटी का भी आइडिया हो और ऑपरेशंस का भी आइडिया हो। तो ये एक वो लोग होते हैं जो बेसिकली इंश्योर करते हैं कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो सिक्योरली डिप्लॉय हो रही हो। तो हमें डेव सेकऑप्स का कॉन्सेप्ट को जो है ना सीखने की जरूरत है कि डेव सेकऑप्स की प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि आपका कोड किस तरह से सिक्योर होगा, जब आपका कोड बिल्ड होगा तो उसके ऊपर स्टैटिक एनालिसिस कैसे चलने हैं, डायनामिक एनालिसिस कैसे चलने हैं, रिग्रेशन के दौरान टेक्स्ट और इंटीग्रेशन के दौरान किस तरह की हमने टेस्टिंग करनी है। तो ये चीजें डेव सेकऑप का पार्ट होती हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। देर आर थिंग्स जो हमें जब भी हम कोई क्लाउड प्रोवाइडर्स या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो तो हम उनको देखें कि जो भी हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज करें ना, तो हम उसमें देखें कि जो उनके पास जो डिजाइन है वो डेटा लीकेज को प्रिवेंट करते हैं या नहीं। अगर वो करते हैं तो किस तरह के उनके पास, किस स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन है उनके पास, और किन फ्रेमवर्क्स को वो फॉलो करते हैं, उन फ्रेमवर्क के ऊपर कितने कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड हैं। देन जो भी हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देख रहे हो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हो, उसके पर जो है उसके पास जो कंप्लीट आर बैक इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई हो, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, उनके पास डाटा इंक्रिप्शन के कंट्रोल्स हों, और उनके पास जो विजिबिलिटी फॉर थ्रेट डिटेक्शन हो, कि वहाँ पर अगर कोई थ्रेट आता है तो वो उसको कैसे डील करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं, कंप्लायंस को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, सर्टिफिकेशन लेते हो, और उनके पास इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब भी हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को चूज करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें फिगर आउट करनी होती है। ओके, थैंक यू मंसूर थोड़ा सा फॉर आखिर में थोड़ा सा आखिर में क्विक हो गया, बट नाउ वी आर ओपन फॉर द actually क्वेश्चन। we are running out of time. We have 7 minutes remaining. Actually, we have 40 minutes meeting. So thank you so much, Mansoor, for that informative and engaging presentation on the importance of cloud security.
I want to wrap this up with a funny note. Remember, the cloud is just someone else's computer. So make sure you don't leave your digital umbrella at home when it's raining data breaches. So as we wrap up this webinar, it is clear that the cloud security is a critical issue that should be addressed, and we should have learned this. We hope that you found this webinar very informative and useful. And thank you for joining us today. And we hope to see you at our next webinar. Have a great day.